all of you. Please confirm, am I audible and visible to all? Good afternoon, Shubham. Good afternoon, Snigdha. Good afternoon, Samdata. Thank you for confirming that I am visible and audible. And is my screen also visible to you all? Screen is visible. Thank you so much for confirming, Amrita. So, firstly, a very good afternoon to all of you. And I hope you all are doing great because it's too cold out there. I hope sab abhi you are already having a cup of tea, right? Okay, great. Good afternoon, Parvinder. So here we are again with this Saturday Insights with RM and Margdarshak session, episode 2. Okay, so here in this session, I am me, Shelja Sharma, and your Margdarshak is here, Vishali ma'am. So I would request Vishali, please come and introduce yourself. Hello everyone, very good afternoon to all of you. Am I audible and visible? Yes, thank you so much for confirming. Okay, so how's your preparation going on? As Norset is not very far from now, are you guys preparing very well for your exams? Good afternoon everyone. Good afternoon Harshita. So in the end, we will be taking all your queries related to your content, your scientific queries, and also your any general query. We both will be taking all your queries in the end. But today's theme for discussion is how to cover minor subject for our upcoming NORCET. As we all know कि हमारा NORCET अब बहुत दूर नहीं है, 12th अप्रैल आने वाली है. So उसके अकॉर्डिंग हमारे जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर पे तो हमारा फोकस हमेशा रहता है. बट माइनर सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, किस हिसाब से हमें उनको टाइम देना है, हाउ मच टाइम वी शुड गिव टू एवरी माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे अपने आज वाले सेशन. राइट. सो मिस शैलजा, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, आपका आज का डिस्कशन आगे का कर लीजिए प्रोसीड. उसके Okay, बाद हम thank you स्टार्ट कर so देंगे. much. Thank you so much, Vishali ma'am. So, along with this, students, let's move ahead with this session. So, firstly, I would like to welcome you all to the session. Let's begin this exciting journey and work together towards shaping your bright future. And as we always say, that your success is our motto, and we all are here and we are putting our best efforts just to crack the NORCET 8, right? And I hope you all are here also just to crack the NORCET 8, and you all are also putting your best efforts. Okay, so before moving ahead with the session, students, I want to share this quote with you all. Just to give you a motivation, like, do not be afraid of going slowly. Be afraid only of standing still. So why I have added this quote in this session? Because I found this relatable to your studies. There are many students who haven't started, अभी तक जिसने preparations अपना start नहीं किया है, right? या फिर जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका भी मेजर, जैसे अगर हमारी क्लास में लाइव क्लासेस में 4 सब्जेक्ट्स मेजर कवर हो चुके हैं, ठीक है, आपके 2 हुए हैं या 1 हुआ है या फिर एक भी नहीं हुआ है, बट आप धीरे धीरे उसको कर रहे हो, बट स्टिल देयर इज अ वर्ड दैट यू आर ट्राइंग एंड यू आर डूइंग दैट, राइट? डोंट स्टॉप. अपना जहां पर आपको वहां पर स्टैंड नहीं होना है. यू हैव टू वर्क और यू हैव टू मूव. अगर आप स्लोली भी मूव कर रहे हो तो स्पीड अप हो जाएगा धीरे धीरे, बट डोंट थिंक लाइक नो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट, लेट्स ट्राई द नॉर्सेट 9, बिकॉज वी हैव अभी भी टाइम है. यू हैव टू स्टार्ट अगेन. अगर आप अभी स्लो प्रिपरेशन चल रहा है, आगे चल के स्पीड अप भी हो जाएगा, ठीक है, बट डू नॉट स्टैंड. जहां पर अभी आपको वहां पर रुकना नहीं है. सो ऑलवेज थिंक, ऑलवेज जब भी आपको लगे कि नहीं अभी नहीं, नॉर्सेट 9 प्रिपेयर कर लेंगे, डोंट डू दैट. बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अर्थ बैच में जिसने मुझे मतलब मेरा जब कॉल पे इंटरेक्शन होता है, इन यू गाइज वर से मैम अभी इतना नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है. We will try for NORCET 9, but we have NORCET 8, right? And you all have all your tools and all your important subjects classes. आपके सारे classes टेस्ट सब आपके पास है. So you have time. You have to start your working from here. Okay? So don't stand and don't stop.
And remember this quote always: do not be afraid of going slowly, be afraid only of standing still. Okay, so after this, I want to inform you all who all students are not in this WhatsApp channel. Please join this WhatsApp channel. Sare updates I'm sharing in this WhatsApp channel only regarding the classes, test or any new update. Okay, students? Okay, so now here's an update regarding the test and discussion. I hope sub students, you all are aware that test and discussion is live now. Are you all aware about this? Please confirm, are you all aware that test and discussion is live now? Thank you so much for confirming, Sameer, Yash. Okay, so now let me just update you that the test and discussion, as I already told you, पहले वाले session में मैंने आपको बताया था कि this session will be having 4 approaches. First one is your revision, second is your test, third will be your discussion, and fourth will be your live out session. Okay, so what is the revision? Revision में आपके one liner videos होंगे, ठीक है, particular subject के, जो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो पीडियाट्रिक का एंड बायोकेमिस्ट्री का ऑलरेडी अपलोडेड है ऐप में, यू कैन चेक, आप अपना चेक कर सकते हो NNL1 में, ठीक है। आफ्टर दैट CSAT will be conducted. CSAT is your comprehensive subject assessment test that will be based on the particular subject. And third one is your discussion. Discussion is of your CSAT questions. And fourth approach is your live doubt session. So after discussing the test, still if you have any query, any doubt regarding any question of a particular subject, you can clear that doubt in the live doubt session. I hope I am clear to everyone what is test and discussion and what are the approaches of test and discussion. Thank you so much, students, for confirming. After this is, I hope you all have updated the app also, right? NNL1 ऐप सबने अपडेट कर लिया है, एंड जिसने नहीं किया है प्लीज अपडेट द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, बिकॉज इस अपडेट में आपके बहुत सारे जो माइनर बग्स थे जो आपको स्मूथली रन नहीं हो पा रहा था ऐप. So for the smoother experience, we have updated the app and we have removed the fixed the minor bugs. So what we have included in this update, first one is your test and discussion video tab added in the वीडियो सेक्शन, सॉरी. सो आई होप सबको यहाँ पे टेस्ट एंड डिस्कशन का टैब मिल गया है. इज देयर एनीवन जिसको टेस्ट एंड डिस्कशन का टैब अभी तक नहीं मिला है? लेनोई, yes ma'am, but it's still not working. TND, yes, I have shared you have shared this query with me na, I have shared with the team. It will be resolved within 24 working hours, don't worry. ओके ग्रेट. सो आई थिंक सबने यहाँ पे अपडेट कर लिया है ऐप एंड सबको टेस्ट एंड डिस्कशन का टैब मिल गया है. स्टिल अगर किसी को नहीं मिला है, लेट मी एक्सप्लेन दैट. You have to open the NNL1 app, go to the videos tab, and there on the same interface you will be getting the test and discussion videos. Okay, below on the fast track videos आपका जहाँ पे मेंशन है ना, उसी के नीचे आपका टेस्ट एंड डिस्कशन का टैब अपडेट हुआ है. You can check the videos there. यस श्वेता, ओनली पीडिया एंड बायोकेमिस्ट्री का भी इसलिए है बिकॉज इसका एक कंप्लीट स्केड्यूल है विच आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल. आप सबके व्हाट्सएप पे मैंने आपका टेस्ट एंड डिस्कशन का स्केड्यूल शेयर कर दिया है. तो पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपका वीडियोस अपलोड होगा, ठीक है. सो अभी तक पीडिया एंड बायोकेमिस्ट्री का हुआ है अकॉर्डिंग टू द TOC ऑफ टेस्ट एंड डिस्कशन. Okay, so now the second update what we have covered in this app update, what is the my practice question feature is live now. किसी ने ये चेक किया है? माय प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला जो फीचर है दैट इज वर्किंग. ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस? देखो, जब आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके कुछ क्वेश्चंस करेक्ट इनकरेक्ट होते हैं और कुछ आप स्किप कर देते हो, राइट? सो दैट पार्ट, वो आपका जो क्वेश्चंस आपके होंगे जो इनकरेक्ट होंगे या फिर जो आप स्किप कर चुके होंगे, वो आपके माय प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हो. Now, where to find this tab? You have to open the NL1 app, go to the test tab, and on the top right corner, you will get the My Practice Questions tab. Okay, so this is the best feature. Go and use it after the session only. And then there is the third update, that is minor bugs for a minor bugs fixed for a smoother experience. As I have told you, जो आपके minor bugs थे that are fixed now, and the app is running very smoother. I hope this app update is clear to everyone. Am I clear with this?
Okay, so Amrita, thank you for confirming. Okay, so from now here, I would like to hand over the session to Miss Vishali. She will be telling you how to cover the minor subjects for the upcoming NORCET 8. Because you all are struggling with the major subjects कि कैसे मैम minor subjects पे कैसे ध्यान दें, कैसे cover करें. So here Vishali ma'am is here to help you out. Hand over given to you, Vishali ma'am. थैंक यू। सो सबसे पहले तो मोहम्मद अफजल, आपने अभी आरआरबी एग्जाम के लिए क्वेरी डाली है। लेट मी टेल यू गाइस, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है एक। आप अभी जस्ट इस सेशन के बाद में भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमारा आरआरबी का एक नया एग्जाम मॉड्यूल आया है, दैट इज कम्प्लीटली फ्री फॉर यू ऑल, जिसके अंदर आरआरबी स्पेसिफिक सारे टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आरआरबी के रिकॉल वीडियोस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको NNL1 ऐप के अंदर ही अलग से टैब में प्रोवाइड होगा। सारा कंटेंट, टेस्ट वगैरह अपलोड हो चुके हैं। यू गाइस कैन गो देयर इन द NNL ऐप एंड क्रॉस चेक एवरीथिंग। और डिटेल के लिए आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो अभी प्रीमियर हुआ है थोड़ी देर पहले, यू गाइस कैन गो एंड चेक देयर। सारी डिटेल्स उस वीडियो में दी हुई है इस एग्जाम, आरआरबी एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेन थीम, दैट इज हाउ टू कवर माइनर सब्जेक्ट फॉर अपकमिंग नॉर्सेट। आई एम वेरी मच श्योर अभी तक आपने अपने मेजर सब्जेक्ट्स को कवर करने की पूरी कोशिश कर रखी है कि एनी हाउ मेरे मेजर सब्जेक्ट खत्म हो जाए पहले, ताकि मेरे नॉर्सेट के अंदर अच्छी रैंक आए। बट माइनर सब्जेक्ट पे हर कोई फोकस नहीं करता। लास्ट आते आते हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हम पहले मेजर सब्जेक्ट कवर कर ले, माइनर सब्जेक्ट तो माइनर ही होता है, उसको छोड़ देते हैं या फिर हम स्किप कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये चीज करते हैं लास्ट में, जब बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत सारे मेजर सब्जेक्ट के पार्ट, ऐसा लगने लगता है कि ये वाला पार्ट अभी मेरा और वीक है, मुझे अभी इसमें और वर्क करना है। सो सबसे पहले तो आपको माइंड में से ये चीज निकालनी होगी कि माइनर सब्जेक्ट है तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जितना हमारा मेजर सब्जेक्ट का क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा, उतने ही मार्क्स का हमारा माइनर सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन होगा। एंड यू गाइज नो वेरी वेल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, इट्स अ माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर नॉर्थ सेट में न्यूट्रिशन से आता ही आता है, हम सबको पता है। और वो उतने ही मार्क्स का होता है जितने मार्क्स का हमारा कोई मेडिकल सर्जिकल का क्वेश्चन होता है, राइट। सो हम किसी भी माइनर सब्जेक्ट को ये सोच के इग्नोर नहीं कर सकते कि वो माइनर सब्जेक्ट है। अब यहाँ आता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि हमें अब उस माइनर सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। ठीक है, ये चीज भी बिल्कुल पॉइंट सही है स्टूडेंट्स का, आप सबका, कि माइनर सब्जेक्ट पे ही ज्यादा टाइम लगा देंगे तो मेजर को कैसे कवर करेंगे। आई अग्री विद दिस पॉइंट, बट यहाँ आता है हमारा एक स्ट्रैटेजिक टाइम मैनेजमेंट, एक स्ट्रैटेजिक प्लान कि हमें किस हिसाब से, किस वे को, किस अप्रोच को फॉलो करके अपने माइनर सब्जेक्ट्स को भी कवर करना है, ताकि हमारा माइनर भी कवर हो और हमारा मेजर भी ना रह जाए। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि अब हमें माइनर सब्जेक्ट्स को भी कैसे कवर करना है अलोंग विद आवर मेजर सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। ठीक है, आप सबकी जो भी क्वेरीज होंगी, आपकी सारी क्वेरीज लास्ट में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट में कैटेगरी कौन सी आती है। मेजर सब्जेक्ट के अंदर हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसको आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से जानते हो, उसके बाद हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग आता है, ऑप्स एंड गायने आता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आता है, एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पीपीटी में फार्माकोलॉजी मेंशन क्यों किया है, जबकि वो तो एक माइनर सब्जेक्ट है। बट लेट मी टेल यू गाइस, फार्माकोलॉजी भले ही हमारा माइनर सब्जेक्ट है, बट इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लाइटली नहीं ले सकते। इसको हमें हमेशा एज अ मेजर सब्जेक्ट ही कंसिडर करना है। कभी भी इसको ये नहीं समझना है कि ये माइनर सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ मेंशन करने का पॉइंट ये है कि हमें अपने ऊपर के जितने भी मेंशन सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट है, उनको कवर करने के बाद में हमें सबसे पहले फार्माकोलॉजी को कवर करना है। उसके बाद हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को कवर करना है। उसके बाद हम माइनर सब्जेक्ट की लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले आप अपना एडल्ट हेल्थ नर्सिंग से स्टार्ट करेंगे कवर करना। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग डन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग डन, ऑप्स गायने डन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग डन, फंडामेंटल्स डन। उसके बाद हमें फार्माकोलॉजी पे फोकस करना है। एंड आप सबका फार्माकोलॉजी की क्लासेस स्टार्टिंग में ही कवर हो गई थी। ऑलमोस्ट आपका सारा कंटेंट अर्थ बैच का आपको ऐप के अंदर अवेलेबल है। कहीं पे कोई टॉपिक डाउट लग रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उस क्वेश्चन को वीडियो से रेफर करो। ठीक है, और फार्माकोलॉजी आपकी ऑन टॉप होनी चाहिए सबसे पहले, अगर मैं माइनर सब्जेक्ट्स की बात करूं। ठीक है,
उसके बाद में आपको उठानी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो अगेन एक मेजर सब्जेक्ट है। जब आपके ये वाली लिस्ट कंप्लीट हो जाए, इसके बाद अब आपको आना है बाकी के माइनर सब्जेक्ट्स पे, जो यहाँ लिस्ट में मेंशन्ड है, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, देन बायोकेम न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोजेनेटिक्स, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमने डिफरेंशिएशन कर लिया मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट का। अब इसके बाद में हमें अब क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को पढ़ना कैसे है, कितना टाइम देना है स्पेसिफिकली। ठीक है, सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? थैंक यू। ओके, सो फार्माकोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को, इफ यू गाइज आर वर्किंग समवेयर, या फिर आपके पास दिन में इतना टाइम नहीं है, आप किसी ना किसी चीज में, इंपॉर्टेंट चीज में इन्वॉल्व है, तो आपको 3 to 4 आवर्स पर डे देना है दोनों सब्जेक्ट्स को। पहले फार्माकोलॉजी कंप्लीट करो 3 to 4 आवर्स पर डे देके, उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग उठाना है। बट इफ यू गाइज आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, मिनिमम है आपको 8 आवर्स तो देने ही देने हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी पहले, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये फ्लो हमेशा आपको फॉलो करना है फॉर अपकमिंग नॉर्सेट। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बाकी के माइनर सब्जेक्ट को कैसे कवर करें। सबसे पहले देखो, फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को अगर आप आपने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, ठीक है, और आपकी सारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और फार्माकोलॉजी ऐसी है कि अभी मेरे को जीरो से स्टार्ट करना है, मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, अभी मेरा सारा पेंडिंग है, what you guys can do, you guys can take the list of HYT topics, refer the plan C+। ठीक है, लेकिन अब सबसे पहले तो फार्माकोलॉजी की अगर आप अर्थ बैच की वीडियोस भी देखोगे, दैट दे आर वेरी मच सफिशिएंट for your upcoming NORCET। So if you guys are referring अर्थ बैच वाला वीडियोस, they are also sufficient, आप वो भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, प्रायोरिटी अपनी अर्थ बैच को देना। उसके बाद में और आपको डेप्थ में जाना है, तो आप प्लान C+ का वीडियो रेफर करना। बट अगेन मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करूंगी कि प्लान C+ का वीडियो अगर देख रहे हो, तो पूरा लंबा वीडियो नहीं देखना, टॉपिक वाइज देखना है उसको। ठीक है, इसके बाद अगर आपके कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, अपनी HYT टॉपिक की लिस्ट जो आपके साथ शेयर की है, उस लिस्ट को रेफर करो, एक थोरो लिस्ट बनाओ, प्लान बनाओ कि आज मुझे इतने से इतने आवर तक ये वाला टॉपिक कवर करना है, देन उसके बाद नेक्स्ट डे ये वाला, देन अगेन नेक्स्ट डे कौन सा करना है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद में जो आपकी बाकी की रिवीजन है, यू गाइज आर अवेयर, अभी आपको मिस शैलजा ने भी बताया कि हमारा टेस्ट एंड डिस्कशन आ रहा है। बाकी जो आपका पार्ट रहेगा वो आपका टेस्ट एंड डिस्कशन और आपके फास्टर क्लासेस से रिवीजन पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा लास्ट में एक नॉर्सेट सबमिट होता है जस्ट बिफोर द एग्जाम, उसके अंदर आपकी ऑलमोस्ट बाकी की रिवीजन हो जाएगी। अब आते हैं हमें बाकी माइनर सब्जेक्ट्स को कौन कौन से कितने कितने दिन देके कवर करना है। अभी तक आपको जितना मैंने बताया समझ में आया? अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि हमें अपने माइनर सब्जेक्ट्स को कहाँ से स्टार्ट करना है। फार्माकोलॉजी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग करने के बाद में हमें कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं माइनर, और कौन से सब्जेक्ट को कितना हमें मिनिमम या मैक्सिमम दिन देने हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक ब्रीफ प्लान होगा कि हमें टेंटेटिवली इतने दिन एक पर्टिकुलर माइनर सब्जेक्ट को देने हैं, ओनली देन वी कैन क्रैक आवर नॉर्सेट बाय कवरिंग ऑल मेजर प्लस माइनर सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से ही आपको स्टार्ट करना है, जो आपको स्टार्टिंग में अभी स्लाइड शेयर की गई थी। आप, आई जस्ट होप आप सबने वो लिखा है विद पॉइंटर्स कि कौन सा सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट आएगा। लिखा है किसी ने आप में से? अगर नहीं लिखा, दैट्स ओके। अभी एक और स्लाइड में आप लोगों को शो करूंगी, अभी शैलजा मैम एक बार शो कर दें, उसमें से भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो। वो पूरा एक फ्लो डायग्राम है जिसको फॉलो करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि माइनर सब्जेक्ट कौन से, माइनर सब्जेक्ट के बाद में कौन सा माइनर सब्जेक्ट उठाना है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का एक ही सिंपल फंडा है, कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रांग, और आपकी कमांड क्वेश्चन समझने की और अपनी थ्योरी को उस क्वेश्चन में इम्प्लाई करने की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो स्ट्रांग तभी होगी व्हेन योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच स्ट्रांग, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और वो तब आएगा जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे अपनी। जब तक हमारा नॉर्सेट क्रैक नहीं हो जाता तब तक, ऐसा नहीं है कि आज छोड़ देते हैं कल पढ़ लेंगे, एक दिन रेस्ट ले लेते हैं परसों से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, टिल दैट टाइम किसी को कोई और इस थीम से रिलेटेड क्वेरी है तो यू गाइस कैन कम फॉरवर्ड एंड आस्क मी।
Anyone can come forward and ask me the question. Okay, so here we have the slide. Thank you, Shelza ma'am. Okay, here as you all can see there is a flow diagram. अब सबसे पहले हमें उठाना है अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हमें 1 वीक देना ही देना है। ठीक है, मिनिमम है ये 1 वीक आपको देना ही देना है। 1 वीक दे, और इस पूरे 1 वीक में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पढ़ने, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टॉपिक्स कवर करने हैं, कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद क्या करना है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। एक टॉपिक हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेकंड टॉपिक हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस, इस तरह से आपको क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एनाटॉमी फिजियो के बाद में करना है आपको बायोकेम एंड न्यूट्रिशन। बायोकेम एंड न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर नॉर्थ पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन तो मिनिमम है फिक्स, हर नॉर्थ सेट में आता है न्यूट्रिशन से। सो बायोकेम एंड न्यूट्रिशन को आपको 3 दिन देने हैं। आफ्टर दिस आपको करना है माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोजेनेटिक्स, जिसको आपको 1+3 डेज देना है। 1+3 इसीलिए लिखा है कि आप थोड़ा सा माइक्रो और पैथोजेनेटिक्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू एंड योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बट टोटल ऑफ 4 डेज आपको दोनों सब्जेक्ट को मिला के देने। इसके बाद आता है हमारा नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक तो इन्हीं क्वेश्चन में होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड हर स्टूडेंट की नहीं होती रिसर्च एंड स्टैट्स पे। ठीक है, सो इसको आपको कम से कम 2 दिन तो देने ही है। अगर आपका वीक है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैट्स वीक है, तो आप उसको 2 से 3 दिन कर सकते हो। और जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट आप स्टडी कर रहे हो रिसर्च का या फिर स्टैटिस्टिक्स का, उसी दिन सेम डे आप उसी टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, नहीं तो वो चीज भूल जाओगे। ठीक है, और अगर नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स इट्स अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसको हमें बार बार रिकॉल करना होता है। ठीक है, इसीलिए देन एंड देयर ऑन द सेम डे टॉपिक खत्म किया, टॉपिक खत्म करने के बाद में आपको उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं। इसके बाद आता है हमारा नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, दोनों को आपको एक एक दिन देना है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मिला के 17 to 20 डेज का आपका पूरा प्लान बनता है, जिसमें आप माइनर सब्जेक्ट्स अपने कवर कर लोगे। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, कि आप अपने कंफर्ट जोन को कितना छोड़ सकते हो अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपनी नॉर्थ सेट 8 की रैंक के लिए। ठीक है, सो दिस वाज अ ब्रीफ प्लान। आई नो आप सबका वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, आप सबकी स्टडी आवर्स डिफरेंट है, सो कहीं ना कुछ थोड़ा चेंज होगा। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हो, बट फ्लो आपका यही रहना चाहिए। ठीक है, so by following this flow chart you guys can proceed with your minor subject preparations. Now if you guys have any query related to this, you guys can ask me. समझ आया सबको? यस, यस डियर प्रज्ञा, सबसे पहले आपको अपने अर्थ बैच के वीडियोस ही रेफर करने हैं, वो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जब वो कवर हो जाए, फिर भी आपको लगता है आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे या आपको किसी प्लान को बहुत डेप्थ में पढ़ना है, तब आप अपने प्लान सी प्लस को रेफर कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज प्लान सी प्लस को रेफर, अगर आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर आप प्लान सी प्लस में मत जाइएगा। यस, हाउ टू डील विद द नॉन नर्सिंग पार्ट। जैसे आपने ये माइनर सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, इसके बाद में आपको अपने नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स उठाने हैं। ठीक है, और इसके भी आपको टॉपिक वाइज डे सेट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉन नर्सिंग में बात करें, रैंक एंड ऑर्डर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और आपके रीजनिंग से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, सीरीज देते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वर्ब दिए जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको अपने टॉपिक्स लिखने हैं, लिस्ट बनानी है टॉपिक की, और एक एक दिन डेली सब कुछ प्रैक्टिस करना है। अर्थ बैच के जो यस डियर, फास्ट ट्रैक से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन योर फास्ट ट्रैक, जो आपका एक रिवीजन बेसिस पे कवर होगा। ठीक है, फॉर नॉन नर्सिंग क्लासेस यू गाइस कैन रेफर योर टीओसी डियर, टीओसी में मेंशन्ड होगा ये सारा कुछ।
कहाँ से ज्यादा इफेक्टिव होगा? डियर, नॉन नर्सिंग पार्ट इज लाइक, जितने भी हमारे नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, देयर आर एम्पल ऑफ क्वेश्चंस ऑन वेब। बहुत सारे क्वेश्चंस है वेब के ऊपर। अगर आप डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे, आपकी कमांड इवेंचुअली बहुत अच्छी हो जाएगी नॉन नर्सिंग पे। बट अगेन, यहाँ पे जो आरआरबी का आपका एग्जाम मॉड्यूल आया है, उसके अंदर आपको नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने नॉन नर्सिंग के पार्ट। And additionally, one more thing I just want to add here, that is कि आपका जो WhatsApp channel है, on that channel we are sharing the non-nursing pills, okay, हम्म। on daily basis. And the day is bifurcated कि किस दिन में आपका इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, किस में आपका एप्टीट्यूड का होगा, and किस में रीजनिंग का होगा. So I hope you all are following that, and if not, start following the channel. उसमें आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस मिलते हैं आपके नॉन नर्सिंग के लिए. और जो भी आपके साथ में नॉन नर्सिंग पिल शेयर होती है, उसमें जहां पे भी कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि ये वाला पार्ट मुझे नहीं आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, जो हमारे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको फॉर्मूला नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, लाइक कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, उसके लिए तो वी हैव मल्टीपल थिंग्स। हम बहुत सारी टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं मैथ्स की। जस्ट एक फॉर्मूला याद करना, उसको सिर्फ हमें प्रैक्टिस में लाना है। आई नो, बीइंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, हमारी कमांड उतनी अच्छी नहीं होती नॉन नर्सिंग पे, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वी ऑल नो दैट। सो हमें ही प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो एक बार फॉर्मूला समझ आ जाएगा, हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, वो इवेंचुअली हमें अपने आप याद हो जाएगा कि कौन सा फ्लो है, किस तरह से हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है? Someone is asking for the rational. Somdatta is asking for the rational of maths and reasoning. Are we providing them the rational also in the file? Yes, the solutions we are providing the next day of the same questions. If we are for providing the question, if we are putting the questions in the WhatsApp channel by today, then the solution of that question is providing by tomorrow. Thank you for answering. That's Okay. why we are saying, students, we are providing you ample of practice questions and ample of content. Please access that. Use आपको ही करना होगा anyhow. Any other queries? मैम एक चीज पूछना था। Yes. Any more queries, students? You have a class at 3. Please tell us if there is any query. कोई क्वेरी नहीं है ना, गाइडेंस से रिलेटेड, नो नो, ना अपने स्केड्यूल से रिलेटेड, माइनर सब्जेक्ट से रिलेटेड, नो मोर क्वेरीज. So we can consider everything is going very smooth and well. मैम आई हैव वन क्वेरी मैम। Yeah, please, Afzal. मैम मेरे कुछ क्लासेस जो अर्थ बैच के अभी लाइव में चल रहे हैं वो मेरे छूट गए हैं किसी कारण की वजह से। तो उसको मैं रिपीटेड फॉर्म में देखता हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो क्या मैं उसको फास्ट ट्रैक से कवर कर लूँ या फिर से वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा देखूँ वो थोड़ा। दिया, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, आपका टारगेट नॉर्सेट कौन सा है? मैम 8 ही है। एथ ही है। और आपने कब स्टार्ट किया प्रिपरेशन? तो ये जब से अर्थ बैच चल रहा है मैम। इससे पहले नॉर्सेट दिया आपने? नहीं नहीं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। सो आपके अभी प्रीवियसली काफी बैकलॉग है, यू मीन टू से? नहीं मैम, 3-4 क्लासेस छूट गए थे बीच में। एक फार्मा के छूट गए, एक और पीडिया की छूट गए, क्योंकि मैं वो आउट ऑफ स्टेशन था इस वजह से। अगर आपके सिर्फ 3-4 क्लासेस छूटे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देके आप उसको भी कवर कर लो। बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं है, ठीक है? ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा टॉपिक स्किप हो जाए जो हमारा एग्जाम में आ जाए। हम किसी भी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वी नेवर नो हमारा नॉर्सेट क्या क्वेश्चन देगा। फास्ट ट्रैक के अंदर अगर वो टॉपिक हमारा अर्थ बैच में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है मेन वीडियोस में, बट वो फास्ट ट्रैक में किसी रीजन से नहीं होता, क्यों, अगर वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, फास्ट ट्रैक में कवर नहीं हुआ और वो नॉर्सेट में आ गया, तो आपका क्वेश्चन नेगेटिव में हो जाएगा। सो अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं है आपका। आई विल सजेस्ट यू टू मेक अ प्लान अकॉर्डिंगली कि आप उसको भी कवर कर लो। ठीक है? थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, बट सजेशन मेरा यही है कि आप उसको कवर करो।
ठीक है। मैम एक क्लास मैंने कवर करने की कोशिश किया, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग था, प्लस नोट्स भी बनाने होते हैं ना, तो पूरा दिन चला गया था एक क्लास वो करने में। आप अभी कितना घंटा दे रहे हो अपनी स्टडी को? ये तो मैम जो क्लासेस चलते हैं वो तो है ही है, और हम्म। रात में थोड़ा 1-2 घंटे बस। आपकी स्पीड अच्छी है नोट्स बनाने की या स्लो है? नहीं, एवरेज है मैम, ठीक है, बहुत एवरेज है। स्पीड भी नहीं है। और नोट्स बनाने के लिए क्या आप सेंटेंसेस यूज करते हो पूरे पूरे, या पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो? नहीं, पॉइंट टू पॉइंट। थोड़ा स्पीड है ना वीडियो का इंक्रीज करके लेक्चर सुनने की कोशिश करो, क्योंकि ओके उसको मैम। छोड़ नहीं सकते हम। थैंक यू ठीक मैम। है। हम्म। Any एनी other मोर queries? क्वेरी स्टूडेंट्स? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम ये पूछना था कि टेस्ट आप बता रहे हैं कि अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन मैम कहाँ पे मिलेंगे, वो मिल नहीं रहे हैं अभी इस टाइम पे, कौन बायोकेमिस्ट्री और से पीडियाट्रिक। आरआरबी के टेस्ट बोल रहे हैं आप? नहीं मैम, वो बता रहे थे कि अभी टेस्ट अब मतलब ऐप में अवेलेबल हो गए हैं बायोकेमिस्ट्री के और पीडियाट्रिक के, लेकिन मैम वो ऐप में मिल नहीं रहे हैं Let me एनएनएल update ऐप you, पे। Pragya. I haven't asked for the test. I have updated for the videos. ओके मैम। Yeah. मैम और एक चीज और पूछनी थी कि ये रीजनिंग और मैथ्स के आप लोग बोल रहे हैं कि कोई ग्रुप है व्हाट्सएप पे जिसको फॉलो करना है, मैम वो प्लीज शेयर कर दीजिए जिसको फॉलो कर सके। That is the WhatsApp channel, and in the same session, I have showed you the link. If और also आपके ना WhatsApp पे भी मैंने शेयर किया हुआ है. I hope you are in the WhatsApp channel of MLB Pro Earth Batch. मैम प्लीज With शेयर the कर दीजिए तो session? फॉलो। अच्छा, आपने स्टार्टिंग से सेशन ज्वाइन किया था? इससे पहले कोई सेशन ज्वाइन किया है प्रज्ञा आपने? नहीं मैम, अभी नहीं किया है, अभी आज ही किया है सेशन ज्वाइन। आज ही किया है, ठीक है. तो जी आपने WhatsApp पे चेक किया था? मैंने आपको WhatsApp चैनल का लिंक शेयर किया था ज्वाइन करने के लिए. मैम देखा नहीं है, सॉरी। Okay, I'll share the link with you again. Okay, just ping me on my WhatsApp. Any other students जिसको WhatsApp चैनल नहीं है, जो ऐड नहीं है WhatsApp चैनल में? Any other student? Okay, Pragya, ping me on WhatsApp after this session. I'll share the link with you of the channel. थैंक यू सो मच मैम। और मैम Okay. टेस्ट के लिए वो क्या करेंगे, जैसे आप बता रहे थे कि टेस्ट है पीडियाट्रिक का और बायोकेमिस्ट्री का। टेस्ट नहीं है, वीडियो अभी अपलोड हुआ है बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर स्केड्यूल कि कब कौन सा आपकी वीडियोस और टेस्ट लाइव होंगे. ओके सो फॉर ओके नाउ द ओके ओके वीडियोस ओके आर ओके लाइव ओके ओके। ओनली. ठीक है, ठीक है. थैंक यू मैम, थैंक सी यू सो सैट मच जब मैम। लाइव होगा आई विल अपडेट यू ऑल, डोंट वरी. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। एनी अदर क्वेरी स्टूडेंट्स? Please come up with your queries. Okay, thank you so much, Rutuja, for confirming that practice is going on. Great. I hope you are revising your rationals also. Are you revising the rationals, Rutuja? Okay, great. Okay, students. So, firstly, let's move ahead with the session. क्या डिस्ट्रैक्शन आता है सोमदत्ता? प्लीज कम अप एंड अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेरी. क्या डिस्ट्रैक्शन आता है? दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग फॉर ना. प्लीज कम अप एंड आस्क योर क्वेरी. दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑन विच यू कैन आस्क योर क्वेरीज अप फ्रंट. डेली प्लान में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आता है। यस मैम. ओके। और उस डिस्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? क्या चीज डिस्ट्रैक्ट करती है आपको? मैम वैसे सोशल मीडिया वाला कुछ नहीं, कि हम्म। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं जो प्लान करते हैं वो कभी कभी फुल नहीं हो पाते होल डे में. ऐसा कभी कभी होता है कि इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, इतना नहीं हुआ, कि इतना रिवाइज करना था आज, इतना नहीं हुआ ऐसे. और थोड़ा थोड़ा जो बैकलॉग्स रह गया है वो मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रहा है जल्दी जल्दी. तो आप टारगेट दिन में कितना रख रहे हो? अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, क्या आप क्वेश्चंस मोर देन 200 300 ऐसे रख रहे हो? ऐसे ही मैम 150 to 200. ठीक है। सो डियर, सबसे पहले तो अपने टारगेट्स को हमें शॉर्ट रखना है अकॉर्डिंग टू आर
थिंग्स कि हमारे पास और भी टास्क हैं अगर करने के लिए, सो हमें ना अपना जो प्लान बनाना होता है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आज एक टॉपिक कवर करना है, 2 घंटे का वो टॉपिक है, ठीक है, मैं 2 घंटे उसके रखूंगी। उसके बाद में क्वेश्चन ऐसा फिक्स नहीं रखूंगी कि अगर आज मैं 2 घंटे टॉपिक पढ़नी हूँ तो आज भी मेरे को 500 क्वेश्चन, अगर मैंने कल टारगेट में रखे थे आज भी मैं 500 क्वेश्चन ही टारगेट में रख के खत्म करूँ। सो हमारा जो प्लान होता है ना, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और थोड़ा रिजिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि करना ही करना है चाहे हमारा ब्रेन एट द एंड बर्स्ट हो जाए, ठीक है। और डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है अब, ठीक है। अपने गोल के ऊपर फोकस रहना है आपको। जब भी लगे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ नहीं करना, सीधा बस काम माइंड होके बैठो, बैठ के अपने गोल को सोचो कि आप उस गोल की तरफ क्यों बढ़ रहे हो, क्यों आपको वो गोल अचीव करना है, क्या रीजन था जिसके लिए आपने इस गोल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वो रीजन रिमाइंड कराओ खुद को, ठीक है। ब्रेक लो 5-7 मिनट का, अगेन फिर से अपने काम पे लग जाओ, ठीक है। मैम आज जो एक दो टॉपिक रिवीजन कवर कर रहे हैं उसका तो मतलब जो क्वेश्चन है सब तो कंप्लीट करना होगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस। हम्म। तो वो दूसरे दिन के लिए तो छोड़ना नहीं चाहिए ना। छोड़ना नहीं चाहिए, बट अगेन आपका जो मैनेजमेंट है, प्लान मैनेजमेंट है, वो उसकी जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है वो भी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज के दिन में सारा कुछ भर लिया, ठीक है। अपने आवर्स को डिवाइड करना होता है दिन में, एक दिन में सारा कुछ भर लेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है उससे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी प्लानिंग होती है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन का तो पार्ट बाद में आता है, पहले हमारी प्लानिंग इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि हमारा जो आउटकम आए वो प्रोडक्टिव आए, ठीक है। यस मैम। हम्म। क्लास ओनली इन बिटवीन सॉरी। क्लासेस कंसंट्रेशन लूज होता है। इट मीन्स कि आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जो नहीं होना है, ठीक है। आई नो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है क्लास में, कंटिन्यूअसली हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जब जब ऐसा हो अपने आप को बूस्ट करो, ठीक है, खुद को बूस्ट करो। और जितनी भी हमारी क्लासेस होती है बीच में इंटरेक्टिव टॉक्स सब फैकल्टीज करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि अगर आपको कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी डाउन जा रहा है, लूज जा रहा है, बीच में कुछ इंटरेक्टिव कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है, कुछ ना कुछ होता है, तो आपका फ्लो एक बना रहे, ठीक है। इसीलिए सिर्फ स्टडी 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 नहीं होती क्लासेस के बीच में। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। मैम एक डाउट था कि ये जो डेली लाइव क्लासेस रहते हैं ना, वो हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो फिर मैं ड्यूटी के साथ में करना पड़ता है ना मैम, इसलिए तो जो NNL1 ऐप में जो ये है ना, रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, वो देख के कर रहे हैं मैम। तो फिर उसमें कुछ प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, कि वो लाइव नहीं देख पा रहे हैं अभी। अभी मैंने लाइव देखा था, वो सिर्फ पीडियाट्रिक का उतना ही खत्म हुआ है मैम, और दूसरे और भी 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं, तो वो नहीं देख पा रहे हैं। व्हाट इज योर टारगेट नोट से? 8 मैम। 8 है। फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, पहले नोट सेट दिया है? पहले नॉसेट दिया है मैम, लेकिन कोचिंग वगैरह ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ ओके, दिन 2-3 घंटे ही पढ़ाई करते थे तभी। ठीक है। सो सबसे पहले तो डियर, अगर आप सिर्फ ये सोच के चल रहे हो कि मैं अपने वर्किंग आवर्स के साथ में प्रिपरेशन करूं और मैं नॉट सेट क्रैक कर लूं, तो सबसे पहले तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट बैलेंस करके कवर होने चाहिए। जितने सब्जेक्ट्स आपके अर्थ बैच में कवर हुए हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने ऑफ वर्किंग आवर्स में, जैसे ही आपके ऑफ वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं, आप अपनी ड्यूटी से घर आते हो, आपको उस दिन पे पर्टिकुलर टॉपिक्स रखने चाहिए। हाई यील्ड टॉपिक की लिस्ट आपके साथ शेयर्ड है, उनको अर्थ बैच के वीडियो से रेफर करके पढ़ना स्टार्ट करो, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और जो आपके ऑफ डेज होते हैं, ठीक है, अपने जी ऑफ डेज में मैक्सिमम 8 से 9 घंटे आपको देने हैं अपनी थ्योरी को, ठीक है। जी मैम। हाँ जी, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तब आपका सिलेबस भी कवर होगा, प्रैक्टिस पार्ट भी कवर होगा, और आपकी नॉर्सिटेट में रैंक भी आ पाएगी। बट हाँ, ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज है कि हाँ, हमें अपने जॉब के साथ में भी नॉर्सिट के लिए प्रिपेयर करना है। यस, इट्स इवेंचुअली अ बिग चैलेंज, बट students, most of the students are doing this and they are cracking their NORCET, ठीक है। So
नेगेटिव थॉट्स को मत आने देना अपने अंदर। बस अपना एक मैनेज जो प्लान बनाओगे वो प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए आपके पास में, उनको आपको रेफर करना है, स्टडी करना है और नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है मैम एक और क्वेरी थी, वो जो सब्जेक्ट खत्म हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक और बायोकेमिस्ट्री के, तो पूरा सिलेबस खत्म हो गया क्या मैम? फिर से क्लासेस नहीं होंगे उसके लाइव? हाँ, उनका बायोकेमिस्ट्री का भी खत्म हो गया है और फार्माकोलॉजी इज ओवर। मेनी ऑफ द जी मैम, सब्जेक्ट्स आर ओवर नाउ। ठीक है मैम। वो फिर पूरा सिलेबस खत्म हो गया ना मैम उन सब्जेक्ट्स का? हाँ, अकॉर्डिंग टू आर नॉर्सेट वो खत्म हो गया है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, वही पूछना था मैम। Any more queries, students? Please come up. गुड आफ्टरनून मैम। Very गुड good आफ्टरनून afternoon, भैया। Anurag. मैम ये NNL वन ऐप तो मैम वर्क ही नहीं कर रहा है मेरा। वर्क नहीं कर रहा है, क्या इशू आ रहा है? मैम कुछ भी इसमें, जैसे यहाँ पे होम लिखा हुआ है, नोट्स लिखा हुआ है, वीडियो लिखा हुआ है, वीडियो पे क्लिक करता हूँ कुछ चल ही नहीं रहा है मैम। आप एक काम करो, अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर लो एंड मेक श्योर स्टूडेंट्स अपना डिवाइस का या फिर अपने NNL वन ऐप का और NNL क्लासरूम ऐप का प्लीज मेक श्योर ऑन डेली बेसिस टू क्लियर दी कैश मेमोरी. Okay, Anurag, please restart your device once and it will be sorted. एक्चुअली मैम पहली बार ओपन किया हूँ तो इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है ऐसा। नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. आप एक बार रीस्टार्ट करोगे हो जाएगा. अगर स्टिल नहीं होता है प्लीज कनेक्ट विद मी आफ्टर दिस सेशन. ओके Okay? मैम। Yeah. थैंक यू मैम। I hope all your queries are sorted now, students, right? Excuses make today easy but tomorrow harder. Discipline makes today hard but tomorrow easier. As अभी वैशाली मैम ने भी आपको बोला कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आप लोगों को जैसे आप मतलब यू डोंट हैव टू गिव द एक्सक्यूज टू योर सेल्फ. अगर आज आप ऐसे हो रहे हो ना कि अभी क्लास चल रहा है चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, नो दैट इज गोइंग, उसके लिए आपको बाद में पे करना पड़ेगा. राइट अगर आप थोड़ा सा भी अपना ये लैग कर रहे हो ना, क्लासेस के बीच में आप इंटरप्ट हो रहे हो या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, स्टूडेंट्स बी अवेयर नाउ. Okay, gear up now because only 3 months are left for the NORCET 8. You have to cover your syllabus, you have to revise your syllabus, and you have to practice as well. Right? So don't give the excuses to yourself because आप एक खुद को ही excuse दे सकते हो, NORCET 8 को नहीं दे सकते हो. Please make sure that you have to give your best efforts to these 3 months. ठीक है, at least for these 3 months you have to put your best efforts in learning, revising and practicing. And if you need any guidance from your margdarshak regarding any scientific guidance, we are here for you. Vishali ma'am is here for you. Please come up, student. Okay, so please don't make excuses to yourself and remember this quote always. आई होप एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ एंड यू, आप सबको अपनी क्वेरीज के आंसर मिल गए होंगे. एनीथिंग यू वांट टू ऐड विशाली मैम? नो, इट्स फाइन। You ओके have ग्रेट, already covered all important points. थैंक यू सो मच. एनी अदर क्वेरीज स्टूडेंट्स बिकॉज वी आर रैपिंग द सेशन? Okay, thank you so much students. If there is no query, and again we will be coming up with the Saturday Insights with RM and Margdarshak on the upcoming Saturday. Please join the session on time. Okay, great. Thank you so much. And ठंड बहुत है, please have a cup of tea on daily basis. Okay, thank you so much. Take care everyone. All the very best for your preparation.